Hello students and welcome to today's biology class. In the previous class we had already discussed about the first law of Mendel, which is the law of dominance, and we have also discussed about some of the exceptions of Mendel's laws of inheritance, that is the incomplete dominance and co-dominance. Okay, तो ये तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Let us move on to the second law given by Gregor Johann Mendel. और सेकेंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलने का मेन रीजन है दिस वर्ड सेग्रीगेशन. आपके पास जो ये वर्ड है सेग्रीगेशन, segregation literally means to separate. Okay, the word segregation means to separate, and this law is also called as law of purity of gametes because here according to Mendel he stated that the gametes, the allelic genes in the gametes, they are always maintained in their pure form. They are not contaminated. वो एक दूसरे के साथ contaminate नहीं होते हैं. Okay, so that he has explained in this law, which is called as law of segregation. So let us see what is law of segregation. It states that though the two contrasting alleles are present together in a heterozygous, during gamete formation they separate or segregate and enter into different gametes. तो जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन अराइज करता है, जैसे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल जी, तो यहाँ पे दोनों गैमेट्स एक साथ दोनों एलील जीन्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों फिर से सेपरेट हो जाएंगे. They will separate away into different gametes and they will enter into different gametes. Okay, so इसलिए इसको बोला गया law of segregation. ठीक है, let us understand by this specific example. यहाँ पे pod color green और yellow रहता है आपका in case of the pea plant. Pea plant का जो pod color है, green is dominant, yellow is recessive. Green capital G, तो आपका ये जो green color है that is represented by the genotype capital G, green pod. And the yellow one is represented by the recessive character, that is small g. Okay, so this is the parent generation. When you cross the parent generation in the F1 generation, you will find capital G small g. Okay, so as because capital G is dominant, the pod colors are green in F1 generation. So F1 generation में आपके pod color green है. Now when F1 generation individuals are crossed या फिर monohybrid cross is conducted, in monohybrid cross you will find that capital G, one genotype, capital G small g, another, which are two in number actually, and the last genotype becomes small g. तो ये है आपका monohybrid cross. इसको हम लोग capital T small t लेके भी कर सकते हैं. You will find the same result. So here this is the genotypic configuration. Now if you observe carefully in this specific diagram, you understand what law of segregation states. Suppose हम लोग इस G को ले लेते हैं. Let us take this capital G from F1 hybrid. Now you'll find that this capital G is present in this gamete and present in this gamete, right? Now उसी के साथ heterozygous condition में है आपका ये small g. Now this small g enters to this gamete and enters to this gamete, right? So you can observe here कि ये जो capital G है और ये जो small g है, though they are present together in a heterozygous condition, लेकिन gamete formation होते टाइम दोनों अलग अलग gamete में enter करेंगे. They will not enter into the same gamete. In none of the condition you will find कि दोनों एक साथ हैं. ये कैपिटल जी यहाँ पे है, here, और यहाँ पे है, here, और ये स्मॉल जी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. तो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, वो लोग सेपरेट हो जाएंगे. That is what is explained by the law of segregation, which is the second law of Mendel. उसको law of purity of gametes भी बोला जाता है. It is called as purity of gametes because you'll find ये जो कैपिटल जी स्मॉल जी एक साथ हैं, ये एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं करते हैं. दैट मीन्स कैपिटल जी ग्रीन है, स्मॉल जी येलो है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कोई एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर फॉर्म नहीं करते हैं. दे विल नॉट फॉर्म एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर. दैट इज व्हाट द सेकंड लॉ स्टेट्स. ओके, तो यहाँ पे अगर कैपिटल जी ग्रीन और स्मॉल जी येलो होता तो दोनों एक साथ रहने के बाद यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर आता, बट दैट डज नॉट डेवलप. दैट मीन्स वन इज नॉट इफेक्टिंग द अदर एंड द अदर इज आल्सो नॉट इफेक्टिंग द फर्स्ट वन. So that is known as law of segregation. So इतना दूर तक जो हम लोग देखे हैं law of dominance and law of segregation. Here you have seen that it is the pattern of inheritance of one gene. हम लोग one gene का inheritance pattern study कर रहे थे. But in any living organism you will find not just one gene but all the genes are transmitted together. आपके आई कलर का जीन, आपके स्टोमक के एंजाइम्स का जीन, आपके स्किन कलर का जीन, आपके हेयर कलर का जीन, हर एक जीन एक साथ
एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसमिट होंगे, एक एक करके नहीं होता, सब एक साथ होता है। Now what Mendel wanted to find out कि when all these genes are transmitted together to the next generation, does one gene affect the expression of the other gene? तो वो देखना चाहते थे कि जब एक साथ ये सब ट्रांसमिट हो रहे हैं तो एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर एक्सप्रेशन को किसी तरह से हैम्पर करता है क्या। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही कंडक्टेड ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अभी तक हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर रहे थे, ही कंडक्टेड ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो उससे पहले हम लोग इसका रेशियो देख लेते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। आपका F2 जनरेशन का रेशियो जो होता है दैट इज कैपिटल जी इज टू कैपिटल जी स्मॉल जी इज टू स्मॉल जी होता है 1:2:1। दिस इज a standard genotypic ratio of F1 hybrid, sorry F2 hybrid in case of the mono hybrid cross। और आपका phenotypic ratio green is to yellow होता है 3:1। 1:2:1 genotypic ratio, 3:1 it is the phenotypic ratio in mono hybrid cross। Now to understand the transmission of genes together, he conducted a dihybrid cross। Okay, so let's move on to the next topic, that is our dihybrid cross। The word di literally means two। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर्स ले लिए, एक कैरेक्टर नहीं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए एक साथ लिए। कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए? It took the color of the seed and the texture of the seed। It took two characters। Okay, now first let us understand what is a dihybrid cross। dihybrid cross इसका definition यहाँ पे दिया हुआ है, a cross between two parents which differ in two pairs of contrasting characters। दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में अगर डिफर करते हैं और उस टाइप के एक हाइब्रिड का क्रॉस जब किया जाए तो उसको बोला जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मतलब यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, एक कैरेक्टर है द कलर ऑफ द सीड और दूसरा कैरेक्टर है द टेक्सचर ऑफ द सीड। ओके, नाउ दिस इज द क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले जब हम लोग पेरेंट लेते हैं, व्हेन यू आर टेकिंग द पेरेंट, तो पहला है कैपिटल आर कैपिटल वाई। दिस इज डोमिनेंट पेरेंट। कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स येलो सीड कलर and capital Y represents the round seed texture and capital Y represents the yellow seed color। okay, तो R जो है capital R dominant allele for seed shape that is round and capital Y जो है dominant allele for seed color that is yellow। और उसका जस्ट रेसेसिव होता है round, जो आपका डोमिनेंट है उसका रेसेसिव होगा wrinkled represented by small r, और येलो सीड कलर जो है इसका रेसेसिव होता है ग्रीन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई। ओके, सो कैपिटल आर कैपिटल वाई दैट इज द डोमिनेंट पेरेंट। इसका सीड का कलर होता है राउंड एंड येलो। ठीक है, इसका क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, राउंड येलो। ठीक है, whereas the recessive parent will have a genotype small r small y। okay, so ये small r y represents green and wrinkled। okay, green and wrinkled, ये हो गया आपका small r small y। this is a parent generation। so when this parent generation cross in F1 generation you will find capital R small r। okay, तो यहाँ पे अगर जीनोटाइप आप लोग देखें तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई आपका एक गैमेट होगा, यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई एक गैमेट होगा। तो गैमेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली मेंशन नहीं है, आई विल जस्ट राइट कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पेरेंट, और ये जो पेरेंट है इसका होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। राइट, सो ये कैपिटल आर वाई व्हेन फ्यूजेस विद स्मॉल आर वाई फॉर्म्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 generation। and as because capital R is dominant seed is round, and as because capital Y is dominant seed is yellow। so phenotypic condition क्या है F1 generation का? F1 generation का phenotypic condition है yellow and round। ठीक है, क्लियर? या फिर आप लोग इसको राउंड एंड येलो लिख सकते हैं, let us mention as for your book। तो हम लोग इसको इसी तरह से लिख देते हैं, ये हो गया आपका राउंड एंड येलो। क्लियर? तो दिस इज F1 generation। नाउ F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स जो हैं ये दो कैरेक्टर के हाइब्रिड है, मतलब हम लोग कलर ऑफ द सीड भी ले रहे हैं, टेक्सचर ऑफ द सीड ले रहे हैं। तो इनका जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, ये जो हाइब्रिड्स हैं इनका जब क्रॉस किया जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस्ड टुगेदर फॉर्मिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ गैमेट क्या क्या हो सकते हैं?
कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट हो सकता है, ये एक गैमेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है। तीसरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी कर सकता है। और चौथा, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी कर सकता है। तो हमारे पास 4 गैमेट होंगे। So this dihybrid will produce 4 different kinds of gametes: capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, and small r, small y. Similar with the other, इसका भी वही होगा, capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, and small r, small y. 4 gamete. Now when they will fuse together, they will form a specific pattern like this. This is a Punnett square for the dihybrid cross. तो ये आपके dihybrid cross का Punnett square है. So a capital R, capital Y, when fuses with capital R, capital Y, you will have capital R, capital R, capital Y, capital Y. इसका phenotype क्या होगा? Again, R dominant है तो round, Y dominant है तो yellow, round and yellow. Similarly, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, capital R, small y when fuses with capital R, capital Y, capital R, capital R, capital Y, small y. Now again, this will also be round because capital Y is dominant तो yellow हो जाएगा, capital R है तो round होगा. Similarly here, similarly here, similarly here, and this condition, in this condition, this as well as this. तो आपके पास अभी 9 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहां पे राउंड और येलो फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है. ओके, सो व्हेन यू कंसीडर द फिनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन हियर, आप जब फिनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिटरमाइन कर रहे हैं तो येलो राउंड यहां नीचे दिया हुआ है, देखिए रिजल्टिंग फिनोटाइप्स आर येलो राउंड 9 आउट ऑफ 16. तो 16 कॉम्बिनेशन से 9 कॉम्बिनेशन आपके होंगे येलो एंड राउंड. लेकिन ये दोनों आप जब फ्यूज करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यू विल हैव ए जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल वाई. इसको हम लोग डबल अंडरलाइन करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. सो दिस स्मॉल वाई इज रेसेसिव. स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर, यहां पे हम लोग लिखे हैं. तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बिकम्स राउंड एंड ग्रीन. एक और कॉम्बिनेशन आपको यहां पे मिलेगा वैसा ही, कैपिटल आर स्मॉल आई स्मॉल वाई. एक और यहां पे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ये तीनों जो हैं दे आर ग्रीन एंड राउंड. सो 3 कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 16 विल बी ग्रीन एंड राउंड. सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है, इसको डबल कोट कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड, ऊपर भी नीचे भी. तो ऐसे आपके 3 कॉम्बिनेशंस होंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ये 3 कॉम्बिनेशंस जो हैं, स्मॉल आर मतलब वो रेसेसिव हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है. तो आप देखिए सीड वो रिंकल्ड है, राउंड नहीं है पूरा. ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वाई है, दैट मीन्स इट इज डोमिनेंट, येलो कलर आएगा. तो येलो, रिंकल्ड एंड येलो आपका 3 आउट ऑफ 16 कॉम्बिनेशंस होंगे. 1 2 3. This is 1, this is 2, and this is 3. The last remaining one, ये जो लास्ट आपका रिमेनिंग हो गया, इसका आप लोग देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, you'll find this specific one, small r small y, क्योंकि ये जो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, किसके गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, आपका पहला जो इंडिविजुअल था उसका स्मॉल y गैमेट, और दूसरा इंडिविजुअल का भी स्मॉल y गैमेट. When they fuse, they form small r small y. अब ये दोनों ही कैरेक्टर रेसेसिव हैं. स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स रिंकल्ड, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स ग्रीन. सो आपका एक कॉम्बिनेशन होगा जो रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा. सो दिस इज हाउ द कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसमिटेड. नाउ वॉच वेरी केयरफुली. आप यहाँ पे देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई. इसका मतलब है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कर सकता है. सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी कर सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी कर सकता है. सो व्हाट डज दिस सजेस्ट? इट सजेस्ट दैट द कलर ऑफ द सीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेक्सचर ऑफ द सीड, और द टेक्सचर ऑफ द सीड जीन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ द सीड जीन. The pod color is not dependent on flower color. The flower color is not dependent on stem length. The stem length is not dependent on pod texture. तो हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल. मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया, व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में.
दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है, असॉर्टमेंट मतलब प्लेसमेंट। तो कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ नहीं है। कैपिटल आर कैन फॉर्म गैमेट विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन फॉर्म विद स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैन फॉर्म विद कैपिटल टी, कैपिटल आर कैन फॉर्म विद स्मॉल टी। तो कोई भी किसी के साथ फॉर्म कर सकता है, हर कोई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। दैट मीन्स योर आई कलर, योर स्किन कलर, योर हेयर कलर, योर बॉडी टेक्सचर, योर बॉडी हाइट, सब कैरेक्टर्स इंडिविजुअली ही जाएंगे, दो दे आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल टुगेदर, बट कोई भी किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है, लिंक्ड नहीं है। That is the law of independent assortment. It states that the alleles of two or more different genes get shorted into the gametes independently of one another. कोई भी किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं होता है, हर कोई इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट होता है during the gamete formation. Or in other words, you can say the allele of a gamete received for one gene does not influence the allele received for another gene. सो एक गैमेट में जो एक जीन आता है एक एलील का, वो किसी दूसरे एलील के साथ रिलेटेड नहीं है या फिर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। योर बॉडी कलर विल नॉट इन्फ्लुएंस योर हेयर कलर विल नॉट इन्फ्लुएंस योर आई कलर। तो कोई भी कैरेक्टर किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जाते हैं। दैट इज नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। अब उसका रेशियो भी देख लीजिए। फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:2:1:4:1:2:2:1। तो ये जीनोटिपिक रेशियो आपको याद रखना नहीं है, ये आपको चार्ट से ही मिल जाएगा, वो 16 स्क्वायर चार्ट जो इससे पहले हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखे थे। फिनोटिपिक रेशियो तो 9:3:3:1 हम लोग डिराइव कर ही लिए। ठीक है, अभी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:1:4:2:2:1। ये कैसे निकला, ये आपको मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूं, जस्ट गो थ्रू हियर। आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना है टोटल चार्ट में, आपको सिर्फ ये एक ही मिलेगा, दैट इज ओनली वन। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनोटाइप इज 1:2। उसके बाद आपका जो आ रहा है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो ठो, दिस टू, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो। टोटल चार्ट में आपको सिर्फ दो ही मिलेंगे, देयर विल बी नन मोर देन दैट। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका इज टू 2। देन फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट वन दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई कैपिटल वाई, ये दो ठो। तो ये जो जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये जीनोटाइप सिर्फ दो ही है टोटल चार्ट में। तो इसका कितना हो गया फिर से रेशियो, आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगेन द रेशियो बिकम्स 2:2। अब यहाँ पे देखिए बीच में एक रह गया आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना ठो है, सिर्फ एक ही है, टोटल चार्ट में आपको एक ही मिलेगा, दैट इज 1। ओके, सिमिलरली बीच का डायगोनल देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, बीच के चारों सेम कॉन्फ़िगरेशन के, all the four same, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कितने हैं 4। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, और लास्ट में बाकी एक रह गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसका क्या होगा, इसके बाद अगर हम लोग उसको कंटिन्यू करें, बीच का आपका 4 है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दैट इज 4:2, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, सॉरी इसका बीच में एक है आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई 1:2 होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगेन इज 2 है आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट वन इज 1, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आपका रेशियो बन जाता है 1:2:2:1:4:1:2:2:1। ठीक है, ये किस चीज का रेशियो हम लोग अभी डिराइव किए, we derived the ratio of the genotypic ratio of
the dihybrid cross. Okay, so this is about the two different laws of Mendel. One, that is the second law, sorry, law of segregation, and the third law, law of independent assortment, which is based on the dihybrid cross. Okay, so in the next class we'll move on to the chromosomal theories, and these are the three laws of Gregor Johann Mendel, known as the laws of inheritance. Okay, thank you everyone.